Hello, welcome friends, and welcome to another episode of Konaxia High Flyers. I'm Avinash Gorakshakar, your host. And friends, today, we'll be discussing with you a very interesting company from a very niche segment. As usual, all of us know that we obviously talk about emerging companies from emerging sectors, and we make it a habit to talk to the promoters of such companies, and we get to know about the business, their business journey, their growth plans. And today we have got a very interesting company which is now going to hit the SME market. And the company's name is Sri Karani Fabcom Limited. And we have the pleasure of having the managing director, Mr. Rajiv Lakotia, with us. Rajiv ji, thank you very much for sparing your valuable time. In this small Thanks. interaction, I'm pretty confident that we'll be able to understand your company's operations in a much better manner. Thank you for having me here, sir. Yeah. So Rajiv ji, pehla sawal, my first question to you would be that if you could explain to us what is the main business of our company and what has been the positioning of our company in the domestic market as far as this product is concerned. So if you could please start. So we are into manufacturing of technical textiles. Before I start, let me tell you what a technical textile is. Is it different from a regular fabric? Yes. A technical textile is a specialized fabric made for a very specific purpose. In making of a technical textile, we change its properties and characteristics totally, either right from the stage of weaving, dyeing, or coating. आप एक जैकेट यूज कर रहे हो, वो शायद विंड प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, शायद कभी कभी फायर प्रूफ भी होती है. दैट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल. वी आर वेयरिंग अ स्पोर्ट्स शू, यूजिंग अ बैकपैक. आप देखते हो कपड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी फटता नहीं है. इट्स अ टेक्निकल टेक्सटाइल. वेन आवर जवान इज फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, वेयरिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट, रात को वो हिमालयाज में बहुत ही हाई टेम्परेचर में सो रहा है in a tent, or he's using a parachute. These are one of the best examples of a technical textile. So at SKFL, we are focusing on multiple industries like luggage, upholstery, specialized apparels, and shoes. So in fact, Rajiv ji, now second question would be that is this your first generation kind of effort or has it come from your father who started the business? इसके बारे में थोड़ा business journey के बारे में कुछ बताइए. The legacy of textiles goes to 50 years from here in our family business. My family was always in textiles, but I started business 2 decades ago. And when I came after a few years of learning, I wanted to do something new. And it was then when I started to dealing in this specialized fabrics, not even knowing that these were technical textiles. Okay. So it was then from last 20 years I am doing this business. Okay. Abhi, in terms of technical textile product, you mentioned us very nicely how what is actually technical textiles. But for manufacturing these technical textiles, what is the kind of expertise you require? Like, is it a very simple process, or does it take a reasonable amount of skill sets to come and manufacture, this kind of technical textiles? And secondly, if you could tell us about the industry, now since you all are key players in this industry, what is the overall size of the industry and how many players operate here? इसके बारे में कुछ बताइए. सर देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेटा, इसकी डेटा बहुत क्लियर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, इन 2013 द इंडस्ट्री साइज वाज अराउंड 10,000 करोड़ in India. And according to it, in 2024, we are supposed to be at somewhere around 40,000 crores. Okay. Internationally, it's growing at a CAGR of 8%, and domestic, we are going at a CAGR of 12%. And जैसे जैसे people are demanding more quality products, the demand of technical textile is growing even higher. Okay. Okay. अच्छा, इसमें imports अभी फिलहाल कितने हैं? Can you give us some idea what is the amount of imports which cater to this industry as of now? So देखिए, इसमें कोई specific data नहीं है कहीं भी, but हाँ. if we see, तो I think there must be a around 60 to 70% of import till now. Okay. Okay. So basically, one can safely assume राजीव जी कि अभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री को केटर करने का जो सोर्स है वो बेसिकली इंपोर्ट से होता है. आई थिंक पीपल आर इंपोर्टिंग दिस एंड गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड. इज इट राइट?
सर जो बेसिक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, बट अब धीरे धीरे हम लोग इंडिया में स्पेशलाइज, जैसे जैसे फैक्ट्रीज लग रही है, वी हैव स्टार्टेड अ फ्यू 2 3 मोर प्लेयर्स हैव कम हियर एंड वी आर ग्रोइंग इन द सेगमेंट। हम लोग स्पेशलाइज Okay. फैब्रिक में बना रहे हैं और अपने स्केल को भी जो हम लोग एंट्री लेवल पे थे उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो Okay. वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। Okay. No, understood. Rajivji, now tell me one thing that what is the kind of customer base? You mentioned that you got presence in luggage, footwear, backpacks. So, कुछ marquee customers जो आप जहाँ पे आप supply करते हो, can you share some names? And secondly, currently what is the kind of client concentration you have? Does any big client account for a major portion of your revenue, or is it properly kind of diversified within your customer base? Sir, we have the best of the brands as our customers in India. Like the in luggage, we have VIP, Samsonite, Safari. In shoes, we are dealing with Bata, Khadims. Again, Tommy. We have some leather exporters who are making for the biggest brands of the world, Calvin Klein, and many more people are there. सर अभी कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपके ओवरऑल रेवेन्यू में सबसे ज्यादा Our client, कॉन्सेंट्रेटेड? our customer concentration is very fair. We are doing around 60 to 70% business with our top 10 clients and 30 40 ओके. percent with our other clients. ओके, तो बेसिकली यू कैन से दैट वी गॉट अ फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, तो कोई एक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं. एकदम नहीं है, प्लस हम लोग सेगमेंट भी और बढ़ा रहे हैं। वी आर गोइंग एंटरिंग in a higher scale in the specialized fabrics. Just now we cracked a very good order from a very big manufacturer of specialized garments. अभी बताइए सर, ये इंडस्ट्री में प्राइसिंग कैसे होता है? लाइक मुझे पता है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज अ वेरी अपस्केल प्रोडक्ट, इसमें वैल्यू एडिशन बहुत होता है. तो नॉर्मली जब आप वीआईपी से या बाटा से बात करते हो, तो इज देयर सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इतना वॉल्यूम आपको मिलेगा तो इतना प्राइसिंग होगा? एंड इज द रॉ मटेरियल प्राइस पास थ्रू अलाउड टू यू, लाइक इन बिटवीन व्हाइल सप्लाइंग द ऑर्डर, एज्यूमिंग आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, तो डू यू गेट अ पास थ्रू फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? इफ यू कुड टेल अस. So generally we get a planning of 3 to 4 months from all our customers. So we don't change the price very frequently. 5% plus minus in our raw material we manage it at our end. Sometimes we are gainer, sometimes we are at par with them. बट अगर ओके. बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो दे ऑब्वियसली सिट एंड टॉक ओके. विद अस एंड चेंज द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड. राजीव जी, इस बिजनेस में थोड़ा सीजनैलिटी का भी इम्पैक्ट आता है. लाइक डू वी सी द सेकंड हाफ टू बी ऑलवेज मच बेटर देन द सेकंड हाफ, और does the business operate stably across 4 quarters, या तीसरा या चौथा क्वार्टर नॉर्मली काफी ज्यादा होता है? आई मीन इफ देयर इज एनी सीजनैलिटी, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. सो जनरली द लास्ट क्वार्टर इज द बेस्ट क्वार्टर ओके. एंड इन रेनी सीजन द बिकॉज हम लोग मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं तो रेनी सीजन में थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाता है तो दैट इज देयर बट नाउ द ओके. अब डिमांड राउंड द ईयर ही रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल. हम्म। अच्छा, और एक बात बताइए राजीव जी कि अभी हमारे जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो सेगमेंट है, इसमें व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लाइक इन द एरिया इन विच यू ऑपरेट? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? हम लोग काफी कंपनीज के साथ कॉम्पीट करते हैं, या इज इट अ वेरी स्मॉल क्लब ऑफ कंपनीज वेयर ओनली फ्यू कंपनीज आर मेकिंग these technical textiles? And secondly, in a case of our company, what is the USP which you offer to the customers so that they come again and again and patronize our product? तो डिफरेंशिएशन हम हमारी प्रोडक्ट में कैसे कस्टमर्स को ऑफर करते हैं? इन शॉर्ट, व्हाट आर द क्वालिटेटिव काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस व्हिच यू एंजॉय, एंड ऑब्वियसली दैट्स द रीजन आवर बिजनेस इज ग्रोइंग क्वाइट रैपिडली. सो देखिए अब जो बिजनेस रह गया है इट इज अ टोटल पैकेज आउट हियर। मेरे कस्टमर कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को खाली प्राइस अच्छा चाहिए या खाली क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो वी आर अ टोटल पैकेज फॉर द कस्टमर। हम लोग कस्टमर को बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑन टाइम डिलीवरी, हर तरह से उनको मैनेज करते हैं कि ओके. दे स्टिक बैक टू अस। ओके. So basically, it's a combination of quality, pricing, and basically the entire services which you offer end to end to the customer. So that's how you are able to get the best I mean customer patronage. सर राइट। आप एक बात बताइए, कल अगर किसी को ये बिजनेस में एंटर करना है, आई मीन जस्ट एज एन एग्जांपल, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर अ न्यू प्लेयर टू कम एंड सेट शॉप इन दिस इंडस्ट्री? इज इट सिंपल
प्लांट एंड मशीनरी लगा दी, कैपिटल लगा दिया, आदमी लगाए, तो इज इट that simple, or will it take some time for that fellow to come up to a measurable level and sell the products to the same customers? So it is not a normal textile, as I mentioned before also. It's a technical textile. तो Correct. टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत कुछ टेक्निक्स है उसको बढ़ाने के लिए, जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आता है. तो बिल्कुल. इट्स नॉट सो इजी तो सर, इट्स नॉट. तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि काफ़ी सालों की आर-एन-डी इसमें गई है, उसके बाद ही प्रोडक्ट स्टेबल हो गया है, उसके बाद ही कस्टमर्स पैट्रोनाइज़ कर पाए। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, लेकिन नए खिलाड़ियों को आने के लिए दिक्कत है। इट इज़ नॉट लाइक रेगुलर टेक्सटाइल्स वेयर वी सी सो मेनी yarn एंड कॉटन फैब्रिक कंपनीज़, सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक रियली डिफरेंशिएट्स यू एंड योर कंपनी, तो वो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, राजू जी अभी बताइए, वर्किंग कैपिटल पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल नॉर्मली हमारे बिजनेस में क्या साइकिल होता है? बाय द टाइम यू गेट द ऑर्डर, यू एग्जीक्यूट इट एंड सेल इट टू द कस्टमर, और फिर कस्टमर आपको आपके जो गुड्स के पैसे देते हैं, वो साइकिल कितना बड़ा होता है? सर इट्स अराउंड 3 to 4 months. अच्छा, तो बेसिकली मोटा-मोटी हम ये मान के चले कि अबाउट 120 डेज़, 120, 15-20 दिन आपका 120, वर्किंग हाँ, कैपिटल। 120 दिन 10-20, हाँ. अच्छा, और एक बात राजू जी, जो हमने आपके फाइनेंशियल्स में देखी है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग अनयूजुअल, यू आर अ ग्रोइंग कंपनी, सो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपकी ज्यादा है। आपकी इन्वेंटरीज में देख रहा था, इन्वेंटरीज काफी काफी सिग्निफिकेंट है, डेटर्स ठीक ठाक है, और इस कारण से क्या हो रहा है ना कि आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में, हालांकि बिजनेस बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हम्म. इसके बारे में मैनेजमेंट ने कुछ सोचा है? क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट ऑलवेज विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, इसमें कोई प्लानिंग आप कर रहे हो जिससे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होगा? तो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, एंड आई थिंक आई एम श्योर यू मस्ट बी क्लोजली वॉचिंग दीज नंबर्स, तो इसके बारे में कुछ बताइए. सर इन्वेंट्री हाई है, एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट, एंड दैट इज इंटेंशनल. देखिए पहले तो हम लोग वी स्टार्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग, सो जो हमारी जो वर्किंग साइकिल है वो बढ़ गई है. ओके. देन वी कीप अ स्टॉक कस्टमर के लिए, कि कस्टमर भी जो हमारे हैं उनके प्लान्स भी अप डाउन होते हैं, 30-40% तक भी अप डाउन होते हैं. सो वी कीप अ स्टॉक, so they come back to us and we support them in all the manners. So this gives us a very big advantage also from our other factories. नहीं, बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि होपफुली आगे चल के राजू जी हम ये मान के चले कि जैसे-जैसे आपका एक्सपेंशन प्लान खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, सो योर कैश फ्लोज विल बी एडिक्वेट इनफ व्हिच विल मेक देम पॉजिटिव, बिकॉज़ वी विल डेफिनिटली लाइक टू सी दैट योर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आल्सो बिकम पॉजिटिव अलोंग विथ योर improvement in profitability in terms of your operating EBITDA, in terms of your profit after tax. So this is ऑपरेटिंग something. ऑपरेटिंग कैश फ्लो जहां तक है, तो इट हैज सम अदर रीजंस आल्सो जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. दिस इज ड्यू टू अ मर्जर फ्रॉम आईजी के टेक्निकल टेक्सटाइल्स. उस कारण से हमारे कैश फ्लो में फर्क है. एंड Okay. we are sitting in November, and the best 5 months are yet to come. Okay. Like Okay. I told you, the best quarter is the last quarter. So the best 5 months are yet to come. Plus, November is a Diwali holiday for Surat. So we हाँ, were एग्जैक्टली. almost closed for 20-25 days. हाँ, So वो एग्जैक्टली. उस reason से भी वो high है. And नहीं, ठीक है. sitting today, I find it fairly good, and I hope to that it will come in a positive territory very soon. Hey, बढ़िया. I think very nice, nicely articulated by you, Rajiv ji. So we'll look forward for that. Now tell me one thing, sir. पिछले साल हमारे लिए बहुत अच्छा था. हमने कुछ 128 करोड़ का रेवेन्यू किया. Hmm. प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरह से जंप गया. तो मार्जिन्स भी मैं देख रहा था, आपके मार्जिन्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया. तो इसका मेन रीजन क्या था कि वैल्यू एडेड, आई मीन आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बदल गया, मार्जिन्स इंप्रूव हो गए. तो व्हाट वर द मेन रीजन फॉर दिस शार्प जंप इन टॉप लाइन, इन प्रॉफिटेबिलिटी? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द लास्ट ईयर? जरा क्लियरली हमको बताइए सर. जैसे 2023 में वी वर एट EBITDA ऑफ 12%, बट आपने जो सही देखा कि इन 2020 इन बाय नवंबर 23 वी आर एट 19%. बिल्कुल. तो इट इज बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस. जैसे पहले हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में थे, वी वर रैपिडली एक्सपेंडिंग, तो हम लोग अपना हाँ. कॉस्ट कट में ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे. बट नाउ हम लोग जब स्टेबल होते जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कट भी बहुत अच्छी हुई है.
We are focusing heavily on cost cutting. Plus our infrastructure is ready. तो infrastructure ready हो गया है, तो we are again having a competitiveness in the production methods also. बिल्कुल। ये सब करके हम लोग ऑर्डर्स भी ज्यादा आ रहे हैं, कस्टमर्स आर गिविंग मोर एंड मोर ऑर्डर्स टू अस, एंड वी आर able to get more benefits also. So ये सब these are reflecting in the books. So I think this is really nice to know. So just broadly, Rajiv ji, can we expect that ये जो margin का improvement 19% है, can we expect that company should be able to sustain or maybe improve these margins going forward without giving a number? अगर आप थोड़ा सा हमको margin का outlook बता दें. नहीं, yes, we will sustain this. आई थिंक वेरी गुड। उसके बाद मेरे को बताइए कि सर अब अभी कंपनी आईपीओ इशू कर रही है, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, सर व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपीओ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच यू आर रेजिंग मनी, इफ यू कुड जस्ट टेल अस इन अ स्मॉल summary so that all of us can understand. So the issue size is around 35 to 40 cr, and we are offering a public offering of 18.75 lakh shares. That is a dilution of 26%. Okay. And we are utilizing around 70 to 75% of this amount for a backward integration as a dyeing house. Okay. So now will be a totally integrated unit. We will be having from weaving to dyeing, coating, and will make Okay. us 100% integrated factory, Okay. Okay. which will help us gaining the orders from the best of the MNC brands from the world now. Okay. Okay. And Correct. we will be able to dye more specialized fabrics. Okay. हम लोग अपने कस्टमर को बेटर क्वालिटी दे पाएंगे, बेटर प्राइसिंग दे पाएंगे, बेटर टाइमली डिलीवरी दे पाएंगे. सो बिल्कुल। दिस विल गेट देयर कॉन्फिडेंस एंड we'll have a even a better customer concentration now. From the investor side, see, you all have started this company. In fact, you started, your career in this segment. Now, new investors are going to come in after the public issue. तो सर, नए investors जो आएंगे, इनके लिए आपको आपको आपके साइड से क्या मैसेज होगा? Obviously everybody comes in the market to make money, but from a long term orientation, आपके कंपनी में wealth creation कैसे होगा और आप किस प्रकार से उनको रिवॉर्ड करोगे? एक ब्रीफ मैसेज अगर आप दो, that will be really be great. सर अब जब हम लोग फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, वी हैव द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर आवर बिजनेस पार्टनर्स. अब नॉट विल वी इंक्रीज, विल गो ग्लोबली. सो बेटर ब्रांड्स आएंगे एंड बेटर टॉप लाइन होगी, बेटर बॉटम लाइन होगी, एंड वी आर एक्सपैंडिंग. ठीक है, तो उसका मतलब यू से दैट ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ काइंड ऑफ अ गुड वैल्यू क्रिएशन फॉर द इनकमिंग इन्वेस्टर, राइट? यस, होप सो. ठीक है, आई थिंक नहीं, आई थिंक अंडरस्टूड. राजू जी, नाउ लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस. इनफैक्ट हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, बट हमारे धंधे में इतने सालों से आपने बिजनेस किया है, सबसे बड़ा रिस्क अगर कोविड को आप निकाल दीजिए, क्योंकि कोविड वाज अ वेरी एबनॉर्मल रिस्क व्हिच वाज अ वन ऑफ इवेंट, बट अदरवाइज हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क कहाँ से आता है? आई मीन व्हाट इज द मेन रिस्क वी फेस एंड हाउ हैव वी मिटिगेटेड दिस रिस्क अप टिल नाउ? एज ऑफ नाउ वी आर डाइवर्सिफाइड इन मेनी सेक्टर्स. तो हम लोग एंड गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सेक्टर. सो रिस्क अगर होती है तो कभी कोई एक सेगमेंट में होती है या दूसरे में होती है. कोविड आया तो कोविड में ट्रैवल टूरिज्म वाज लेस, बट वी सस्टेन्ड. वी एंटर्ड इनटू टेक्निकल टेक्सटाइल्स. पीपी सूट के कपड़े बन रहे थे, मास्क के कपड़े बन रहे थे, दोज आल्सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स. सो वी फाउंड अ वे आउट देयर आल्सो. नाउ हम लोग and our client concentration is already 60 to 70% from our top 10 clients. We are adding new sectors also. We'll go be entering in defense, we'll entering in other segments, जो हमको एक ease देता है not to be dependent on single industry. So and reducing our risk also. Okay. So basically, you are trying to reduce your dependence on one sector. In fact, already the company is well diversified. लेकिन Right. जो मेन रॉ मटेरियल है राजू जी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है. सो ऑन द रॉ मटेरियल साइड वी आर कंप्लीटली कंफर्टेबल. देयर इज नो इश्यू ऑफ एनी सप्लाई कंस्ट्रेंट और प्राइसेस गोइंग अप. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर कंफर्टेबल. Right, 100%. ठीक है, आई थिंक राजीव जी, आई थिंक थैंक यू वेरी मच. छोटा इंटरव्यू था, लेकिन सर काफी अच्छी तरह से आपने हमको समझाया. So friends, if you like the video, please like and share it. And once again, Rajiv ji, thank you very much. Best wishes to you, Thanks for your calling. entire management team, and best wishes for your forthcoming IPO also. Thank you. Thank you.